السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ لاہور میں بسنت کی تقریبات کے دوران پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف بھی شریک ہوں گے۔ انہوں نے اندرون شہر ایک روزہ بسنت منانے کا پروگرام ترتیب دیا ہے، جس میں اپنے قریبی اور پرانے دوستوں کو مدعو کیا گیا ہے تاکہ پرانی یادیں تازہ کی جا سکیں۔ نواز شریف لاہوری ثقافت سے خصوصی لگاؤ رکھتے ہیں اور محفوظ بسنت کے انعقاد کے لیے گزشتہ کئی ماہ سے متحرک بھی رہے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے ثقافتی شخصیات اور متعلقہ حلقوں سے متعدد مشاورتیں بھی کی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بسنت پنجاب کا روایتی اور موسمی تہوار ہے جو ثقافت کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ معاشی سرگرمیوں میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ واضح رہے کہ لاہور میں 6 سے 8 فروری تک بسنت منانے کے لیے حکومت اور انتظامیہ نے عوام کے تعاون سے خصوصی انتظامات کر رکھے ہیں۔ لاہور میں محفوظ بسنت کے انعقاد کے لیے سٹی ٹریفک آفیسر ڈاکٹر محمد اطہر وحید نے خصوصی پیغام جاری کرتے ہوئے شہریوں پر زور دیا ہے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے جاری کردہ SOPs پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے تاکہ خوشیوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ٹریفک پولیس 24 گھنٹے تینوں شفٹوں میں فرائض انجام دے گی۔ ہر شفٹ میں 1000 سے زائد وارڈنز اور افسران تعینات ہوں گے، جبکہ دفاتر میں موجود نفری کو بھی سڑکوں پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ رش والے علاقوں میں اضافی فورسز، ٹریفک رسپانس یونٹ، لفٹرز اور بریک ڈاؤن گاڑیاں مسلسل ڈیوٹی پر موجود رہیں گی، جبکہ زونل SSPs اور ڈویژنل افسران فیلڈ میں نگرانی کریں گے۔ سٹیوں نے شہریوں کو ہدایت کی کہ بسنت کے دوران موٹر سائیکل کا کم سے کم استعمال کریں اور بغیر سیفٹی روڈ موٹر سائیکل چلانے کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی۔ خلاف ورزی پر کارروائی بھی کی جائے گی، جبکہ داخلی و خارجی راستوں پر بھی سیفٹی اقدامات جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بسنت کی بحالی حکومت کی کاوش ہے اور شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ ضلع انتظامیہ اور ٹریفک پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔ کسی بھی مدد یا معلومات کے لیے 15 پر رابطہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6، 7 اور 8 لاہور بسنت منانے جا رہا ہے۔ ٹریفک پولیس، ڈسٹرکٹ پولیس، تمام ادارے انہوں نے ایک کوارڈینیٹڈ رسپانس پلانس بنائے ہوئے ہیں، ڈپلائمنٹ پلانس بنائے ہوئے ہیں۔ تمام شہریوں سے میری درخواست ہوگی کہ آپ نے ایک تو بائک کا کم استعمال کریں، اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو آپ نے سیفٹی راڈ ہے اس کا استعمال کرنا ہے۔ ابھی بھی ہمارے 100 کیمپس لگے ہوئے ہیں لاہور میں، فری آف کاسٹ سیفٹی راڈس لگا کے دے رہے ہیں، تو آپ نے یہ غفلت نہیں کرنی۔ ہم انٹرسیپٹ آپ کو کریں گے اگر آپ نے یہ جو بسنت کی ریگولیشنز ہے اس کی کمپلائنس نہیں کی۔ تو آئیں مل کے اپنا کردار ادا کریں اور سارے کے سارے مل کے اس کو سکسیسفل ایونٹ بنائیں تاکہ ہر سال بسنت جو ہے نا وہ سیلیبریٹ کی جائے، اس کی ریوائول اسی طرح برقرار رکھی جائے۔ تھینک یو۔ لاہور میں دہائیوں کے طویل وقفے کے بعد بسنت کی واپسی پر پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی نے حکومتی SOPs کے تحت شہر بھر میں ہائی الرٹ سیکیورٹی نافذ کر دی ہے۔ CM بسنت فیسٹیول کنٹرول روم سے 24 گھنٹے خصوصی سرویلنس جاری ہے، جبکہ چھتوں پر پورٹیبل کیمراز، ڈرون مانیٹرنگ اور AI بیسڈ کیمراز کے ذریعے خطرناک دھاتی ڈور، چرخی اور موٹر سائیکلوں پر سیفٹی روڈ کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ہارسپورٹ، فلائی اوورز، داخلی اور خارجی راستوں کی مسلسل مانیٹرنگ کے ساتھ ہوائی فائرنگ اور اسلحے نمائش پر فوری کارروائی کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق لاہور میں بسنت صرف 6، 7 اور 8 فروری کو سخت حکومتی شرائط کے تحت منعقد ہوگی۔ لاہور کے علاقے محمد پورہ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے جعلی دودھ تیار کرنے والا یونٹ بے نقاب کر دیا۔ چھاپے کے دوران 1500 لیٹر مضر صحت دودھ تلف کر کے مقدمہ بھی درج کر لیا گیا، جبکہ مکسنگ مشین، ڈرمز، کیمیکلز، پاؤڈر اور دیگر سامان ضبط کر لیا گیا ہے۔ DG پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کے مطابق دودھ پانی، آئل اور کیمیکل سے تیار کیا جا رہا تھا جو انسانی صحت خصوصاً بچوں کے لیے خطرناک ہے۔ جعل سازی میں ملوث عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جا رہی ہے اور شہریوں کو معیاری و خالص خوراک کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ پاکستان کے بڑے اور اہم سرکاری ادارے ریلوے لاہور ڈویژن میں مبینہ کرپشن کے اطلاعات سامنے آ رہے ہیں۔ معاملے کی تفصیلات اور مبینہ طور پر ملوث عناصر کے حوالے سے تفصیل بتائیں گے ڈپٹی چیف رپورٹر سید شہباز، جو اس وقت میرے ساتھ کال پر موجود ہیں۔ جی شہباز، بتائیے گا۔ جی بالکل، ریلوے پاکستان ایک وسیع و عریض ڈپارٹمنٹ ہے۔ اگر لاہور کے حوالے سے بات کی جائے
तो लाहौर में भी रेलवे के अंदर मुख्तलिफ अंदाज में मुबैना करप्शन के बाजार को गर्म कर रखा है। जैसा कि हमने रेलवे का लोहा चोरी होने के हवाले से खबरें ऑन एयर की थी, मगर आज एक छोटे से ओहदे मेट पर तैनात वकास भट्ट की बात सामने आई है, जो घर बैठे रेलवे मुलाजमीन की हाजिरियां लगाता है और उनसे मुबैना तौर पर भत्ता लेता है। इस वजह से मुकम्मल हाजिरियां लगाई जाती हैं और उनको घर बैठे पूरी सैलरी अनायत की जाती है। यहाँ बताता चलूँ कि जो काम किए बगैर सैलरियाँ वसूल करते हैं, उनमें कोई दूध का काम करता है और कोई फर्नीचर का और कोई रक्षा चलाने में मसरूफ़ रहता है और कोई सीसीटीवी कैमरों का काम करता है। सबसे बड़ी बात कि वकास भट्ट मेट की उन पर पूरी शफ़क़त है। सोचने वाली बात यह है कि जो ड्यूटी नहीं करते उनकी जगह कैसे पूरी होती है। ये कैसी मिली भगत है, इसको कहते हैं डिपार्टमेंट को दोनों हाथों से लूटना। और आला अफीसरान की खामोशी और सवालिया निशान है। जी। बसंत के 3 रोज़ा फेस्टिवल के मौका पर लाहौर पुलिस ने शहर भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात प्लान नाफिज कर दिया है। 13 एसपीज, 50 डीएसपीज, 258 एसएचओ समेत 10,000 से ज्यादा अफसरान और अहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि रेड, येलो और ग्रीन जोन्स में नाकाबंदी, रूफटॉप्स, ओवरहेड ब्रिजेस और दाखिली और खारजी रास्तों पर खुसूसी नफरी तैनात है। 265 डॉल्फिन, 122 पीरू और 180 लीड टीमें पेट्रोलिंग कर रही हैं। सेफ्टी रॉड की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। सीसीपीओ लाहौर का कहना है कि हवाई फायरिंग, धाती डोर और गैर कानूनी पतंगबाजी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि महफूज और पुरअमन बसंत यकीनी बनाए जा सके। लाहौर में सरकारी महकमे वासा में भी मुबैना बेज़ाब्तियों और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। इस मामले की मज़ीद तफसील के लिए बात करते हैं अपने चीफ रिपोर्टर सैयद सदीक रिजवी से, जो इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। जी सैयद सदीक रिजवी, बताइएगा। जी बिल्कुल, करप्शन किंग चुगल ऑपरेटर सईद खान ने एमडी वासा के साथ अपनी तस्वीर खिंचवाकर आम लोगों को चक्कर देना शुरू कर दिया है कि मेरे एमडी वासा के साथ बड़े पैमाने पर तलकात हैं। एमडी वासा के साथ सईद खान की तस्वीर स्पेशल टीवी न्यूज़ ने हासिल कर ली। शिमला हिल के एसडीसी अरशद को वासा कॉलोनी गुलशन रावी में अलॉटमेंट करवाई, जबकि जो क्वार्टर अभी खाली नहीं हुआ, बंदा अभी रिटायर भी नहीं हुआ, तो उसके रिटायर होने से 8 माह पहले ही इसका क्वार्टर अरशद एसडीसी शिमला हिल को सईद खान ने साजबस करके अलाटमेंट करवा दिया है और उससे पैसे लिए हैं। इस क्वार्टर की अलाटमेंट और उस क्वार्टर में पहले से रहने वाले रिटायरमेंट की तारीख चेक की जाए तो करप्शन भी सामने आ जाएगी। सईद खान का तीसरा अपना ज़ाती घर भी सामने आ गया है, जो कि स्टेशन टेक्निकल कॉलेज की बैक साइड पर गैस को क्वार्टरों में है, जो उसने किराए पर दिया हुआ है। 3 घरों का मालिक होने के बावजूद वासा घर अपने नाम पर अलाटमेंट करवा कर अपने दबात को किराए पर दिया हुआ है। गरीब मुलाजमिन के साथ ज्यादती है। वासा का घर खाली करवाकर किसी और गरीब मुलाजिम को उसका हक दिया जाए। सैयद सदीक रिजवी, स्पेशल टीवी, लाहौर। लाड़काना में पुलिस मुकाबले के दौरान खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग के तबादले में मुलजिम को पिस्टल समेत हिरासत में लिया गया। शनाख्त मुकम्मल कर ली गई है, जबकि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम हालिया वारदातों में मुलविस और रूपोश था। मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। जामशोरों में यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से रैली निकाली गई, जो मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई वापस डीसी ऑफिस पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। इस हवाले से मजीद तफसील देखते हैं इशफाक अहमद बब्बर की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जामशोरा में। जामशोरा में यह कश्मीर से यकजहती के लिए आज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से लेकर एडमोर पंप तक रैली निकाली गई। आइए हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर जामशोरा गजनफर अली कादरी मौजूद है, उनसे इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। जी सर, आज जो कश्मीर के हवाले से रैली निकाली, किस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसा कि 5 फरवरी है, कश्मीर डे है, इसमें अज़हार यकजहती है कश्मीरी अवाम से। जो मजलूम अवाम के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, जो गवर्नमेंट, जो मोदी गवर्नमेंट जो जुल्म कर रही है, उसके खिलाफ ये आवाज़ है। हम कश्मीरी अवाम के साथ हैं और ये जद्दोजहद जारी और सारी रहेगी जब तक कश्मीरी अवाम के उनको हुकूक नहीं मिलते और जो कश्मीर है वो आज़ाद नहीं हो जाता। का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? कश्मीर बनेगा, नारा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान।
पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, मेहरबानी आपकी। पूरे पाकिस्तान में कश्मीर के साथ, कश्मीर के अवाम के साथ जो यकजहती है, उसी हवाले से आज जामशोरे की अवाम भी कश्मीर के साथ खड़ी है। और कश्मीर पे जो पिछले तकरीबन 75-80 सालों से जो जुल्म चल रहा है, और 75-80 सालों से ही पाकिस्तान कश्मीर के साथ यकजहती का इजहार करते हुए आज भी उनके साथ शाना बशाना खड़ा है। के हवाले से बताइए। जी, इस रैली में हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इनवाइट किया और हम इस रैली के मुनासिब से हम जो बताना चाहेंगे कि हम कश्मीर डे पे कश्मीर के अवाम के साथ हैं और हम पाकिस्तान के अवाम के साथों साथ हम इसकी खिदमत करना चाह रहे हैं और हम कश्मीर के साथ कश्मीर के अवाम की भी खिदमत करना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही कहना, इसके बारे में कहना चाहूँगा कि हमारे कश्मीरी जो बरादरान हैं वो बहुत तकलीफ़ में और इस स्टेट में, तो हम लोग उनके साथ हैं और हम हर साल इनके लिए ये रैली निकालते हैं। और जब तक वो हमें पाकिस्तान में नहीं होते, हमारे साथ नहीं होते, आज़ाद नहीं होते, हम हमेशा हर साल उनके लिए रैली निकालेंगे। साहिवाल के हल्का एन 142 से मुंतखब MNA के करीबी रिश्तेदार पर मदीना टाउन के नाम से हाउसिंग कॉलोनी बनाकर शहरियों को सब्ज बाग दिखाने और मुबैना फ्रॉड के जरिए लूटने का इल्जाम सामने आ गया है। इस सब आखिर क्या मामला है, तफसीर बताएंगे राना सद्दाम हुसैन। जी सद्दाम हुसैन, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हड़प्पा स्टेशन का इलाका मदीना टाउन पर मौजूद है। N 142 का हल्का MNA साहब वोट लेने के बाद स्क्रीन से गायब हो चुके हैं। लोगों का बुरा हाल है, बल्कि MNA के रिश्तेदार की ये बनाई हुई कॉलोनी है जिसमें हम मौजूद हैं, जो N 142 से कामयाब हुए MNA जिन्होंने बाद में पार्टी बदली है, उसका इलाका है, उस MNA साहब का। तो अभी फंड करोड़ों रुपए के हुकूमत पंजाब दे रही है, लेकिन इस आबादी का, इस इलाके का कोई पुरसाने हाल नहीं। मदीना टाउन कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे लोगों का बुरा हाल है। पीने का पानी, सीवरेज का निज़ाम जो है वो हर जगह, गटर तो क्या, लोगों के घरों के आगे तालाब बने हुए हैं। एक बच्चा भी यहाँ पे लोगों ने बताया मैं कि इससे कबल पानी में डूबकर गटर में गिरने से जाँ बहक हो चुका है। जानवर गिरते हैं रोजाना, बारिश हो जाए तो यहाँ से निकलना मुश्किल होता है। तो खुदारा वज़ीर आला पंजाब साहबा कॉलोनी माफिया को कब नकेल डालेंगी? मुतासरीन सरापा एहतजाज हैं, लोग घर बनाकर फंस चुके हैं, ना इन लोगों का जीना है ना मरना है। बासर कॉलोनी मालिक है, कॉलोनी फरोख्त करके अब उसका इल्ज़ाम है कि जी मेरे खिलाफ दरख्वास्त दी थी आप लोगों ने, तो आप हकदार नहीं किसी चीज़ के। जब आपने कॉलोनी बनाई थी तो जो दावे किए थे वो पूरे नहीं हुए। इसमें मुबैना तौर पर साहिवाल के अफसरान हराम खाने पे लगे हुए हैं, जो ज़िला कौंसिल के अफसरान हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि कॉलोनी माफिया को नकेल डाले। वो चंद हज़ार रुपये या लाखों रुपए रिश्वत लेकर मुबैना तौर पर अपने पेट का दोज़ख भर रहे हैं। लोग जाएँ जिधर जाते हैं। तो मुतासरीन सरापा एहतजाज है, आइए मुतासरीन की गुफ्तगू सुनाते हैं आपको। हाँ जी, यह मदीना टाउन है जनाब। मदीना टाउन रेलवे लाइन के नाल आ बिल्कुल, असी हालांकि GT रोड के नज़दीक आ। क्या असी पाकिस्तानी नहीं है, असी हिंदुस्तानी है या असी बांग्लादेश तो हाँ कि सानू वो साढ़े हकूक ही नहीं मिलते? की मसला वा? वोट लैन वास्ते आ जाते हैं, बाद दे विच कोई पुरसाने हाल नहीं हैगा कि जी साढ़े को बजट ही कोई नहीं गा जी, कुछ भी नहीं हैगा। उदों तो कह देंगे सानू ऐसी जनाब चिड़ी विखाते हैं सोने की भी चमकती पई है जनाब, तुहानू ही दे जानी। साडा MNA जिहड़ा जित्तिया इत्थों, जिहने पार्टी बदली, ਉਹਨੂੰ अरबां रुपए मिले, हुण करोड़ां रुपए। हाँ जी, वो जित्तिया वा, उन्हें पार्टी बदल ली, हुण नून लीग च चला गया। लेकिन नून लीग वाले काम करते हैं, वो कभी इत्थे आया ही नहीं गा। क्यों? इसलिए नहीं आया कि चौधरी सगीर का भतीजा है। चौधरी सगीर अंजम ने टाउन कट्टिया, उनका सक्का भतीजा है। उन्हें कभी आके पूछया नहीं गा कि यार तुहाडे नाल होया की है, की गलबात है, किस तरह जिंदगी बसर कर रहे, पैसे ले जेब च पाए तो हो गए। कासी ने कुर्सी कोई पानी वाले बड़े औखे हुए पे, पानी कहता कड्डिए कहता ना कड्डिए। अच्छा जी, ये हड़प्पा है कलोनी मदीना टाउन है जी। मालक इतों वेच के चला गया जी। इतों मतलब कि जीना साडा खुमार है वा भी, ना इतों कोई पानी पींदा है वा, ना वही जिहड़ा खूहियां च वही पींदा है वा, ना कोई राह की निकासी है, ना कोई पानी की हैगी है। मकसद कि बस यही कहता भी इतों का कुछ किया जाए। ना कोई शहर, ना मोटरसाइकिल लंघदी, ना कोई रक्शा, ना कोई गड्डी। पानी पींदे पे यही खूहियां जांदा वही पीने, ना कोई राह ना लैनी देनी। राह भी असीं आप दिता राब लिया, ना कोई बनाया किसी ने, ना कुछ। हाल यही है जी, ये मदीना टाउन है गया जी, तो इत्थे तकरीबन सानू 10-15 साल हो गए ने यही हालात हैगा पानी का। ठीक है, ना कोई सड़कों का हिसाब किताब हैगा, ना कोई पानी का हिसाब किताब हैगा वा। ਜਦੋਂ ਦੀ जगह विक गई है, मुड़ के आके किसी ने सुर खबर ही नहीं लई टाउन की। वाले तो तंग ही है जी पानी की वजह तो, काफ़ी सारे तंग ने, परेशान भी ने बेचारे। टाउन वाले तो टाउन बेच के चले गए हैं।
प्लेग जैसी हो जाती है, गंदे पानी में से गुजरना पड़ता है और जरासीम से पाँव खराब हो जाते हैं, गल जाते हैं। तो ये पानी बहुत ज़्यादा यहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक बच्चे भी गिर जाते हैं। जब पानी ज़्यादा होता है तो बच्चे भी तो ज़ाहिर गिरेंगे ही ना, और बीमारियाँ भी फैलती हैं और जानवर भी गिर के डूब जाते हैं यहाँ पे छोटे। तो जिन्होंने टाउन हमें बना के दिया था उन्होंने हमारे साथ बड़े वादे किए थे कि जी हम आपको सड़कें बना के देंगे, फलां चीज़ बना के देंगे, सेवरेज बना के देंगे, कुछ भी नहीं बनाया। और अभी तो उनके ख़िलाफ़ जो है ना टाउन वालों ने वो दरखास्त भी दी थी, तो कुछ हल नहीं हुआ है। ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਦੀਨਾ ਟਾਊਨ ਦਾ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਥੇਰੇ ਆਏ ਬਥੇਰੇ ਗਏ। सख्ती नाल अहकामात ने कि खुले गटरां दे खिलाफ अगर किसी प्राइवेट कलोनी च खुला गटर है तो ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਦੀਨਾ ਟਾਊਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰਾ ਟਾਊਨ ਗਟਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਈ ਨੇ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਲੋਨੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੌਣ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਚੌਧਰੀ ਸਗੀਰ ਅੰਜਾ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਗੀਰ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਆਟਾ ਛਟਾ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਚੌਧਰੀ ਸਗੀਰ ਅੰਜਾ ਫਾਰਮ ਵਾਲਾ। ਅੰਜਾ ਫਾਰਮ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਹਟ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਆ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਵੇਖ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਪਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਡੁੱਬੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਢੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਆ ਗਟਰ ਖੁੱਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਖੂਹੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਖ ਲਓ ਜਨਾਬ, कोई बुरा हाल है जनाब। असी तो मच्छर ना जेड़ा ना जलील कर दिता सानू। बहुत शुक्रिया सदाम हुसैन, हमें अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ दीना चक आका स्टेडियम जेहलम में विंटर स्पोर्ट्स गाला के तहत क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया। मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर मीर रजा ने खेलों को नौजवानों की मस्बत तरबियत का जरिया करार देते हुए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की काविशों को सराहा है और आखिर में फातेह टीम पर में ट्रॉफियां भी तकसीम की हैं। साहिवाल में माजूर बेटे की मां को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दफ्तर में रिश्वत न देने पर मुबैना तौर पर धक्के देकर निकाल दिया गया है। इस सब आखिर क्या मामला है और इसका जिम्मेदार कौन है, तफसील बताएंगे राना सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन बताइए। रही मदीना टाउन हड़प्पा स्टेशन पर मौजूद है, मेरे साथ मुस्तक फैमिली मौजूद है। बच्ची मजूर है, घर में एक फ़र्द कमाने वाला है, किराए का मकान है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से मुतासरा खातून के मुताबिक धक्के देकर निकाल दिया गया। जो हकदार हैं वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और जिला इंतज़ामिया साहिवाल, जो हकदार हैं उनको उनका हक नहीं मिलता। मेरा नाम रजिया बानो, मेरे मियाँ का नाम है अमजद अली है। इत्थे रह रहे हैं हड़प्पा स्टेशन मदीना टाउन। बेनजीर दफ्तर भी बाजी जी जाती रही है तो उन्होंने उत्थे भी नहीं मेरा सर्वा किया। उन्होंने आख्या तुहाडी बच्ची है कि तुहाडा नहीं सर्वा हो सकता, तुसीं घर जा सकदी हैं। उन्होंने सानू धक्के मार मूर के बाहर कर देना। जी ये सानू 1.5 साल हो गया है तो बच्ची का कार्ड बनवाया तो सानू ना कोई सिर्फ एक व्हील चेयर मिली है पिछले महीने, थोड़े दिन होए ने, तो एक बस व्हील चेयर दी। उस तो बाद कोई सानू उन्होंने चीज़ नहीं दी हैगी। मेरी बच्ची ना नज़र आ रहा, ना चल फिर सकती, ना खा सकती है। बाजी जी साढ़े वास्ते कोई भी मदद लैके नहीं इत्थों तक आया। मेरी बच्ची बीमार है, मिसाल मेरा आदमी भी नहीं ठीक हैगा, तो सानू कोई भी अज तक माली इमदाद नहीं दी गई हैगी। पिछले साल भी राशन मिलिया सी, सिर्फ लोगों ने मिलिया सी, सानू वो भी नहीं सी मिलिया हैगा। मैं अपने चैनल के तवज्जो से मुखय्यर अजरा से अपील करूँगा कि ये ज़रूरतमंद हैं, इनकी खुदारा मदद की जाए। बहुत शुक्रिया सदाम हुसैन, हमें अपडेट कर रहे थे। चिलास की बटुगा फ्लोर मिल में आवाम को आटे के बजाय चोकर फराहम किए जाने का इंकशाफ हुआ है। शहरियों का कहना है कि आटा दिखाने से भी इनकार किया जा रहा है, जबकि इंतजामिया की अदम कार्रवाई पर तशवीश पाई जा रही है। आवाम ने फौरी मुआयना और कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया है। सोहावा में यौम यकजहती कश्मीर पर डिप्टी कमिश्नर जेहलम की हिदायत पर परचम कुशाई, वॉक और खुसूसी तकरीबात मुनक्किद हुई। तलबा ने तकारीर, मिले नगमों और टैबलोस के जरिए कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती किया है, जबकि शुहदा के लिए दुआएं भी की गई हैं। डेरा गाजी खान के गाजी घाट पुल पर मुतअद्दिद चेक पोस्ट और टोल प्लाजा के बायस रोजाना घंटों ट्रैफिक जैम मामूल बन गया है। गाड़ियों की तलाशी और वेरिफिकेशन से मीलों लंबी कतारें लग जाती हैं। शहरियों ने चेक पोस्ट को पुल से पहले मुंतकिल करने का मुतालिबा कर दिया है। मुल्तान से वसेब एक्सप्लोरर टीम ने तारीखी और सकाफती वर्से की अक्कासी के लिए अहमदपुर सियाल का दौरा किया, जहां कदीम इमारतों और रिवायती मकामात को दस्तावेजी शक्ल दी गई है। इस वाले से मजीद तफसील देखते हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की रिपोर्ट में।
तारीखी इमारात और कदीम सकाफती विरसा को माजी के झरोकों से झांकने और उन्हें अक्सबंद करने के लिए मुल्तान से वसेब एक्सप्लोरर के बाइकर्स की टीम ने डॉक्टर सैयद मुजम्मिल हुसैन शाह की क़यादत में अहमदपुर सियाल का दौरा किया। मेजबान मोहम्मद मुकद्दस रजा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हल्का PP 130 इफ्तिखार खान बलोच, जिले ज्वाइंट सेक्रेटरी सरदार मोहम्मद आरिफ खान कश्मीरी और नौजवान सोशल वर्कर राना अब्दुल जब्बार नून ने उनका इस्तकबाल किया और उन्हें खुश आमदीद कहा। सबसे पहले वसेब एक्सप्लोरर की टीम ने मोहल्ला गुलजार वाला में माजी की हसीन यादगार गौशाला के मंदिर की बाकियात का मुशाहिदा किया। बाद अजान नक्शो निगार से मुज़य्यन लकड़ी के कदीम दरवाजे, हिंदू तर्जे तामीर की पुरानी रिहायशी इमारतें भी देखी। उन्होंने क़याम पाकिस्तान से कबल अहमदपुर सियाल के डिप्टी कलेक्टर पंडित मनीराम की रिहाइश गाह का भी जायजा लिया। पुराने बाजार में मौजूद पुरानी दुकानों को भी देखा और मोहल्ला जामे मस्जिद की बंद गली का भी विजिट किया। टीम को शहर की पहचान सीताराम के मंदिर की इमारत का भी विजिट करवाया गया। मुकद्दस रजा बतौर गाइड उन्हें तमाम इमारात का तारीखी पसे मंजर भी बताते रहे। शहर के सिक्योरिटी गेट्स में से गर्दिशे जमाना से महफूज रहने वाले एक दरवाजे के बारे में भी टीम को बताया गया। अहमदपुर सियाल में है और यहाँ का जो खूबसूरत तारीखी विरसा है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने बड़ी कदीम हवेलियाँ देखी, सीताराम का ये टेंपल देखा, इसी तरह पुरानी मसाजिद देखी और पुराने मकानात देखे। और मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को रीस्टोर होना चाहिए और अगर ये चीज़ें रीस्टोर हों तो यहाँ पे हम जो टूरिज़्म है उसको फ़रोग़ दे सकते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान से और बैरून मुल्क से भी टूरिस्ट आएंगे इस खूबसूरत विरसे को देखने के लिए। सबसे पहले तो मैं इनको वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। तो इन्होंने जो बड़ा सफ़र करके हमारे पास आया है, हमने इन्हें अहमदपुर सियाल का विज़िट करवाया है। यहाँ का जो है मंदिर खाना वहाँ भी ले गए हैं और जितने भी सियाहत मकाम है सारे हमने इनको विज़िट करवाया है। भरपूर खैर मकदम और विजिट में साथ देने पर वसेब एक्सप्लोरर की टीम ने मुकद्दस रजा, इफ्तिखार खान बलोच और राना अब्दुल जब्बार नून का शुक्रिया अदा किया और उन्हें एजाजी सर्टिफिकेट्स भी पेश किए। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल TV, अहमदपुर सियाल। डेरा गाजी खान में जराइम की रोकथाम और पुलिस कारकर्दगी के जायजे के लिए अहम इजलास मुनक्किद हुआ। DPO सादिक बलोच ने संगीन मुकदमात की शफाफ और बरवक्त तफ्तीश, इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी और अवामी शिकायत के फौरी अजाले की हिदायत करते हुए गफलत पर सख्त कार्रवाई का इंदिया भी दिया है। डेरा गाजी खान कोट चट्टा सर्कल में अमन अमान की सूरत हाल खराब होने पर कत्ल, डकैती और चोरी की वारदातों में इजाफा देखा गया है, जबकि डॉक्टर फिदा हुसैन के कत्ल के मुलजिम ताहाल गिरफ्तार न हो सके हैं। शहरियों ने पुलिस रवैये और मुबैना करप्शन पर IG पंजाब से शफाफ इंक्वायरी का मुतालिबा किया है। शाहदरा लाहौर में रात भर बसंत मनाने के बाद शहरी नाश्ते के पॉइंट्स पर पहुंच गए हैं और दोबारा पतंगबाजी की तैयारियों में मसरूफ दिखाई दिए हैं। इस हवाले से मजीद तफसील बताएंगे मोहसिन जट, जो इस वक्त शहरियों के बीच में मौजूद हैं। जी मोहसिन, बताइएगा। आज ही बिल्कुल पंजाब भर की तरह लाहौर में बसंत का त्यौहार जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। जैसे ही बसंत नाइट का आगाज़ हुआ, लाहौरियों ने, जिंदा दिलाने लाहौर ने बसंत का त्यौहार खूब जोशो खरोश से सारी रात मनाया। उसके बाद एक निजी नाश्ता पॉइंट पे मैं मौजूद हूँ जहाँ पर लाहौरियों का रश दिखाई दे रहा है। अभी इनसे बात करते हैं कि ये अभी जो बसंत का फर्स्ट डे है, आज बसंत का आगाज़ ये नाश्ते के साथ, तवाज़ों के साथ करने के बाद किस तरह मनाएंगे और ये जो हुकूमत पंजाब की तरफ से 3 दिन के लिए बसंत का त्यौहार लाहौरियों के लिए ख़ास एक तोहफ़ा है। अभी बात करते हैं इनसे, जो ऑनर है इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आज जिंदा दिलाने लाहौर ने यहाँ पर किस तरह गहमा गहमी की है, क्या रश है और ये नाश्ता सेल करने के बाद ये भी जाएंगे बसंत मनाने, क्या ये भी लाहौरी हैं, इनका दिल करता है बसंत मनाने को? सर अस्सलाम वालेकुम। सर बताइएगा, आप भी बसंत मनाएंगे और आज रश कैसा रहा है? रश शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रश ज़्यादा, हम भी फारिग हो गए ना, बसंत मनाएंगे। तो आप हुकूमत पंजाब का ये जो खूबसूरत दिन है बसंत का, किस तरह देख रहे हैं? इंशाल्लाह अच्छा देख रहे हैं। आज ही जिंदा दिलाने लाहौर में यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शहरी जो कि नाश्ता से तवाज़ो कर रहे हैं अपना। इनसे पूछते हैं कि ये नाश्ते के बाद बसंत मनाएंगे आज, क्योंकि फ़र्स्ट डे है बसंत का। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें नाश्ता पॉइंट पे आपने हमें पकड़ लिया। असल में ना रात भर हमने जैसे 12 बजे हम दोस्तों ने मिलकर छत के ऊपर जो है ना बड़ा हल्ला गुल्ला किया, बसंत पूरी इंजॉय की है। तो हमारा ये अगला मरहला जो है ना वो नाश्ता था।
तो हमने सोचा कि अभी आराम से पहले नाश्ता करेंगे पेट भर के, उसके बाद जो है ना हम सारा दिन आज और कल का दिन और परसों का दिन बसंत को पूरी तरह एंजॉय करेंगे। देखिए ये 2 दहाइयों के बाद गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि खुशी इस मुश्किल दौर में सबका हक है। तो ये गवर्नमेंट का मैं खुसूसी तौर पे मरीम नवाज़ का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये लाहौरियों को जो है ना बड़ा एक अच्छा दिन दिया है। तो इस तरह के इवेंट होने चाहिए। मैं और स्पेशल टीवी का और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो है ना इसको भरपूर कवरेज दे रहे हैं ताकि लोग जो है ना अपनी खुशियों को एंजॉय कर सके। बहुत शुक्रिया जी आपका। हाँ जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी है कि ज़िंदा दिलाने लाहौर जिस तरह के कोई भी त्यौहार हो, कोई भी इवेंट हो, कोई भी दिन हो, ये बड़े जोशो जज्बे और मोहब्बत के साथ मनाते हैं। बहुत शुक्रिया, मोहसिन जट हमें अपडेट कर रहे थे। मुजफ्फराबाद में यौम यकजहती कश्मीर कौमी जज्बे से मनाया गया। रैलियाँ, दुआइयाँ, तकरीबात और मिली प्रोग्राम्स मुनक़िद हुए। तलबा ने तकारीर और नगमों के ज़रिए कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती भी किया है। भारतीय मुजालिम की मज़म्मत भी की गई। सियालकोट में भारी डैम्पर ओवरलोडिंग के खिलाफ इलाका मकीन सड़कों पर निकल आए हैं और एहतजाजी दीवार खड़ी करके ट्रैफिक बंद कर दी गई है। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कानून शिकनी पर कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी है। नेमतपुर शरीफ में शब बरात अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। मसाजिद में खुसूसी इबादत और दुआया इज्तिमात मुनक्किद किए गए। इस हवाले से मज़ीद तफसील देखते हैं सदाम बलोच की रिपोर्ट में। दरबार नेमतपुर शरीफ शादिलाज के ज़ेर एहतमाम न्याजी फारम के करीब शब बारात की बाबरकत रात इंतहाई अकीदत मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। उस मौके पर इलाके भर से आए हुए हज़ारों अकीदतमंदों और मकामी लोगों ने शिरकत की और रात भर अल्लाह ताला के हुजूर मगफरत, रहमत और बख्शिश की दुआएं मांगी गईं। रूह परवर इज्तिमा का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महफिल को नूरानी कैफियत में डुबो दिया। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उलमाए कराम की पुरअसर तकारीर ने हाज़रीन के दिलों को हिला कर रख दिया, जिनमें शब बारात की फजीलत, तौबा, असलाह नफ्स और अल्लाह ताला के रहमतों का तफसीली जिक्र किया गया। फिजा दुरूद व सलाम, जिक्र इलाही और या अल्लाह की सदाओं से मुसलसल गूंजती रही। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रज़ीत से हसन ऐसुरे हुसैन रजनारू पंजने आई पराव में बनियो, पंजने आई पराव में बनियो आहे अलहवारो मुल्क सजे में जो लगी वो अनारो। पीर नेमतुल्लाह अलैहि नक्शबंदी अलमारूफ रहबर साईं ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हैरत लॻंदी आहे त माण्हू चवंदा आहिनि त अॼु की राति में इबादत जी ज़रूरत कोन्हे का, इज्तिमा जी ज़रूरत कोन्हे का, जागण जी ज़रूरत कोन्हे का। अॼु 40 मुहक़क़ इन ॻाल्हि खे साबित कनि था त अॼु की राति बरकत वारी राति आहे ऐं अॼु की राति अल्लाह जी रहमतुनि जे वंड जी राति आहे। माण्हू चवंदा वञी सुम्ही रहो, छो था जाॻो, पर मदीने वारो साईं फरमाए थो क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा। 15 शाबान जी राति अचे त उथी जागी अल्लाह जी इबादत कयो। अल्लाह जो रसूल फरमाए थो जागो ऐं असांजा माण्हू चवंदा त सुम्ही रहो। जागण में असांजी सिंधी में चवंदा त जाग त लॻई भाग। अल्हम्दुलिल्लाह अॼु अल्लाह जे रहमतुनि वारी राति आहे।
ऐं क़िस्मत वारी रात आहे, फ़ैसिले जी रात आहे, जहन्नम खां निजात ऐं छुटकारे जी रात आहे। पूरे साल में जेके ॿार ॼमंदा उन्हनि जे फ़ैसिले जी तक़दीर लिखण जी रात आहे। असां जेके अमाल कयूं था उहे अल्लाह जे दर ते पेश थींदा, उहा रात आहे। ऐं पूरे साल में जेको रिज़्क़ तक़सीम थींदो उहो अॼोकी रात में उनजो फ़ैसिलो थींदो। दरबार नेमतपुर शरीफ शादी लाल में अल्हम्दुलिल्लाह वॾे एतमाम सां इहा राति असां मल्हाईंदा आहियूं। परे परे खां सिंध जे कुंड कुर्च खां मांडीअरा हक़ीक़त में अचनि था, नातवान, ख़तीब, सैयद, हाफ़िज़ क़ुरान जा ऐं मदीने वारे साईं जा आशिक़ गॾु थींदा आहिनि ऐं वॾे शायाने शान सां असां इहा राति शादीलाल जे शहर दरबार नेमतपुर शरीफ ज़िला बदी में मल्हाईंदा आहियूं। पीर नेमतुल्लाह इलाही नक्शबंदी अलमारूफ रहबर साईं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शब बारात वो मुक़द्दस रात है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएं कबूल फरमाता है और बेशुमार गुनाहों को माफ़ करता है। उन्होंने कहा कि इस रात हमें नफ़रतों को ख़त्म करके मोहब्बत, भाईचारे और खिदमत खल्क़ के पैगाम को आम करना चाहिए। उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद, मुल्क पाकिस्तान की सलामती, अमन व खुशहाली और आलम इस्लाम की मजलूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। इज्तिमा दुआ के दौरान रूहानियत की ऐसी कैफियत में डुबो गया कि सैकड़ों आंखें इश्कबार हो गईं। इख्तिताम पर शुरका में लंगर तकसीम किया गया। शुरका ने इस अजीम शान रूहानी इज्तिमा को ईमान अफरोज़ करार दिया है। सदाम बलोच, स्पेशल टीवी, शादी लार्ज। खैरपुर पुलिस ने कत्ल केस में मुलविस मरकजी मुलजिम को असले समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने 2 रोज कबल रिश्तेदारी तनाज़े पर फायरिंग करके दिलदार चन्नू नामी शहरी को कत्ल किया था। इस हवाले से मजीद तफ्तीश का आगाज भी कर दिया गया है। शेखुपुरा ट्रैफिक पुलिस के अफसर मलिक अहमद अवान लाहौर के दाखिल और खारजी रास्तों पर नाकाजात की मॉनिटरिंग करते हुए हिफाजती इक़दाम का जायजा ले रहे हैं। मजीद तफसील बताएंगे मोहसिन जी। मोहसिन बताइएगा। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की तरफ से बसंत का आज पहला दिन है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर का जो दाखिली रास्ता है, सेक्टर 3 शेखुपुरा, सेक्टर 3 फिरोजवाला। शेखुपुरा ट्रैफिक पुलिस के यहाँ पर डीएसपी अहमद अवान साहब मौजूद हैं मेरे साथ। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि बसंत के हवाले से आप जो लाहौर के दाखिली रास्ते पर मौजूद हैं, सेफ्टी के हवाले से क्या अहकाम जारी करते हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ कि आपके चैनल के तवज्जुह से हमारा जो मैसेज है ये आवाम तक पहुँचेगा। तो डीआईजी साहब ट्रैफिक के अहकामात की रोशनी में आरपीओ साहब शेखपुरा और डीपीओ शेखपुरा बिलाल ज़फ़र शेख साहब की हदायत के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा से लाहौर की तरफ जितने भी हमारे एंट्री पॉइंट है, इन तमाम पे हमारा नाकाजात मौजूद है। हमारी ट्रैफिक स्टाफ मौजूद है जो बगैर सेफ्टी राड के मोटरसाइकिल या रिक्शा लाहौर की जुरिडिक्शन में एंटर होने की कोशिश करता है, हम उसको रोकते हैं, उस पर सेफ्टी राड लगाते हैं और उसके बाद फिर हम लाहौर में एंटर होने की परमिशन देते हैं। तो मेरी तमाम पब्लिक से अपील है, तमाम शहरियों से इल्तमास है कि आप बगैर सेफ्टी राड के लाहौर की हदूद में दाखिल ना हों। जितने भी हमारे नाकाजात मौजूद हैं वहाँ पे खड़े हों तो आपने सेफ्टी राड लगवाएं और उसके बाद लाहौर की हदूद में दाखिल हों, क्योंकि आपकी सेफ्टी हमें बहुत अजीज़ है। हाँ जी बिल्कुल, डीटीओ शेखुपुरा, डीएसपी शेखुपुरा ट्रैफिक पुलिस मलिक अहमद अवान का कहना है कि जितने भी नाकाजात पॉइंट हैं वहाँ पर अपने सेफ्टी राड लगवाएं, जो कि फ्री ऑफ कास्ट है हुकूमत पंजाब की तरफ से। जी। कोट चट्टा में कारोकारी की रस्म के तहत 9वीं जमात की तालिबा बनी की भीड़ चढ़ गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लिया। ताहम मुलजिमान की रिहाई पर सवालात उठ रहे हैं। अवाम ने सख्त कार्रवाई का मुतालिबा किया है। ओकाड़ा में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए बीमार जानवर का 3 मन मुज़र सेहत गोश्त बरामद करके तलब कर दिया और सप्लायर के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई। हुकाम के मुताबिक गोश्त शादी हॉल्स और होटल्स पर सप्लाई किया जाना था। स्पेन की इमिग्रेशन ओपन होने की खबर पर पाकिस्तानी शहरियों की बड़ी तादाद लीगल स्टेटस के हुसूल के लिए कौंसल खाना पाकिस्तान बार्सिलोना पहुंच गए। कौंसल जनरल मुराद अली वजीर ने अमल से मुतालिक तफसीलात फराहम की।
जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो अभी कलेक्टर सेक्रेटरीट के वाले से आपने इतना एक मिशन कंप्लीट किया है, इतने लोगों के हजूम को कंट्रोल किया है और वाम जो है वो आपको किरदार को, आपके अमले के जांपशानी को सराह रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच। हमने अपना फ़र्ज़ निभाया है और कोशिश की कि ऐसे तरीके से निभाएं। जैसे आपको पता था कि मुझे जब पता चला तो हमने छुट्टियां कैंसिल की, हमने वर्किंग आवर्स एक्सटेंड कर दिए, हमने और सारा काम छोड़ के सिर्फ हम कम्युनिटी के इस इशू पे जो डॉक्यूमेंट बनाना चाहते थे ताकि उनका काम हो जाए, तो हमने उसी पे फोकस किया। पहले 2 दिन में बहुत ज़्यादा रश था और अनऑर्गेनाइज था। असल मसला ये था कि हमें पता नहीं था, न हुकूमत ने इस तरह सेंसिटाइज़ किया था। मेरी गवर्नर बार्सिलोना से बात हुई थी, उसमें मैंने यही कहा था कि कम से कम थोड़ा बंदा किसी को सेंसिटाइज़ करे ताकि हम अरेंजमेंट कर सकें। हावेवर मेरी कम्युनिटी ने, मेरे लोगों ने मेरा साथ दिया। उसमें जो एक की फैक्टर्स है जिसको हम, एक तो 24 आवर्स हम नीचे रहे, पिछले जब से 28 तारीख से ये काम शुरू है हम गेट पर खड़े, खुद ही कम्युनिटी को लोगों की लाइनें बनवाई। इसके बाद हमने इस जो जितना प्रोसेस था उसको प्रोसेस स्ट्रीमलाइन किया और एक काम जो हमने किया है, हमने टोकन इशू करके एब्सोल्यूट मेरिट फॉलो किया है, न किसी को टोकन दिया है, न किसी का टोकन आगे किया है। और ये जो हमारी एफर्ट्स थी वो हमारे बच्चों को ये आवाज़ पहुंच गई है कि किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, आप आएँ, खड़े हों, आप टोकन हम आपको देंगे। और जिस बंदे को हमने टोकन दिया उसको हमने सर्विस प्रोवाइड की। शुक्रिया। वज़ीर पंजाब और नवाज शरीफ के विजन के तहत डिप्टी कमिश्नर उमर मेला ने शहर के तरक्याती मनसूबों और ब्यूटिफिकेशन कामों का जायज़ा लेते हुए अफसरान को हिदायत की कि मनसूबे बर वक्त और म्यारी अंदाज में मुकम्मल किए जाने चाहिए। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।